के मुख्य अतिथि एवं प्रभारी प्राचार्य श्री अमित नाथ जी, विद्वान साथियों, ऑनलाइन माध्यम से इस समारोह से जुड़े असंख्य विद्यार्थीगण, आदरणीय अभिभावकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी, गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस की पावन बेला में मैं बलजिंदर सिंह पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 अंबाला छावनी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी का आह्वान कुछ इस प्रकार से करना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हर जगह गाएंगे हम ये तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान और शान का है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में मैं विद्यालय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैम संगीता भटनागर। सैल्यूट। वंदे वंदे जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। इतिहास में विशेष महत्व रखता है। दिनांक 26 जनवरी 1930 लाहौर, और जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, देश की आजादी के उपरांत जब अपने नियमों, अपने उपनियमों, अपने प्रावधानों के लागू करने की बात हुई, तो एक प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान की रचना की, और ढेर सारे या असंख्य देशों से जो जो अच्छी चीजें थी वो हमारे संविधान का भाग बनाने में उन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया था कि हम पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस 26 जनवरी के दिन को सम्मान देना भी इसका उद्देश्य रहा होगा कि हमने 3 या 4 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू किया। इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सतवीर सिंह, विद्यालय कप्तान, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 अंबाला छावनी। प्लीज स्वागत। Freedom in mind, faith in our words, courage in our heart, memories in our soul. We are Indians, firstly and lastly. Good morning, sir, all the teachers and all the students present here. Today, I am Satbir Singh,
standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day. As we all know that today we all have gathered here to celebrate the auspicious day of Republic Day, which we also known as the Ganatantra Divas. On this day in 1950, our entire constitution came into effect. The enactment of constitution replaced the Government of India Act 1935 as the governing authority of India, and thus turning the nation into a newly formed republic. This day also marks the transition of India from an autonomous Commonwealth realm with British monarch as nominal head of Indian Union. The real meaning of republic is that in a nation there would be no hereditary monarch system. The government is of the people, by the people, and for the people. Means the citizens of a nation select their own government, and those leaders access the powers for the betterment of the nation. When we got our independence, when we got our constitution, we were facing some common issues. And still today, we are facing those issues. The issues are like cleanliness, education, unemployment, and many more. But government has taken many steps to overcome these issues. Government has launched many schemes like Swachh Bharat Abhiyan, Beti Bachao Beti Padhao, Skill India, Make in India, and many more. But we cannot depend completely on the shoulders of government. We have to do something for our nation. We can contribute to our nation by paying regular taxes, making human resource effective and efficient, which will increase the GDP of our nation. So, let us take the pledge that we all will maintain peace and harmony and must remember the sacrifices of our freedom fighters so that we can value the freedom which we got just because of them. We are here just because of them. Our constitution is here just because of their sacrifices. Each page of our constitution is written by the blood and the thoughts of sacrifices of our freedom fighters. Before concluding my speech, I would like to say that patriotism is just like charity. It must begins at home. Jai Hind. धन्यवाद सतवीर। अपनी छोटी सी अवस्था में ही आपके विचार काबिले तारीफ हैं और हम सभी के लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत है कि जिन जिन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कमी या कोई भी बहुमूल्य योगदान यदि हम कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। सतवीर के उपरांत मेरी दो पंक्तियां हमारे इस अवसर पर, इस महान अवसर पर आप सभी के लिए ना पूछो जमाने को, ना पूछो जमाने को, इवन हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें न कहीं 5वीं कक्षा की छात्रा कुमारी अनिका सिंह का एक रिकॉर्डेड वीडियो हमें समर्पित है। कृपया वो चलाएं। नमस्कार, मेरा नाम अनिका सिंह है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनिका सिंह है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं देशभक्ति गाने पर नृत्य करने जा रही हूँ। मैम माइक ऑफ है। Sorry.
रागिनियों से सजा भारत अनोखा भारत के इस एक तारे पे गूंजी है जो सब मिल गई एक धुन बनी नमस्कार, मेरा नाम अनिका सिंह है। मैं कक्षा 5वीं धन्यवाद अनिका। इस प्रस्तुति के उपरांत मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी की दो पंक्तियां पढ़कर अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ूंगा। उन्होंने संविधान के विषय में बड़ी अच्छी और बड़ी लंबी चौड़ी कविता लिखी है, जिसमें भारतीय संविधान की असंख्य विशेषताओं का किया ही है, साथ में वे चुनौतियां जो इस संविधान के सामने हैं, कहां कहां पर हमें सुधार की और आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप ढेर सारे संशोधन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में उन दो पंक्तियों के उपरांत मैं अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ूंगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा। मैं शक्ति का अमर पर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ। कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। संविधान की अन्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कुमारी महक, विद्यालय कप्तान KV3 अम्बाला कैंट। प्लीज वेलकम। माननीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक, देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर अपने भावों को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। माह जनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते और तिरंगे को फहराकर गीत खुशी का गाते। संविधान आजादी वाला आज के दिन था आया, इसने दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया। क्या करना है और नहीं क्या, संविधान बतलाता। भारत में रहने वालों का इससे गहरा नाता। यह अधिकार हमें देता है उन्नति करने वाला, ऊंच नीच का भेद ना करता पंडित जवाहरलाल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। सबसे पहले संविधान ने बात नहीं बतलाई। लेकर शिक्षा कहीं कभी भी ऊंचे पद पा सकते और बड़ा व्यापार नियम से दुनिया में छा सकते। देश हमारा रहे कहीं काम सभी कर सकते। पंचायत से MP तक का हम चुनाव लड़ सकते।
लेकर सत्ता संविधान से शक्तिमान देश की इस धरती पर जो चाहे कर सकते, लेकिन संविधान को पढ़कर मानवता को जाने, अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्यों को पहचाने। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। धन्यवाद महक। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मैडम संगीता भटनागर को, वो आए और अपना शुभ कामना संदेश हम सबके साथ साझा करें। प्लीज। मेरे देश में ही शामिल है सारा जहां, देखिए मेरे देश सा देश और कहां, चाहे सारा जहां देखिए। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय अतिथिगण, प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग, विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी अभिभावक और बहुत प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पवित्र पावन राष्ट्रीय पर्व की, भारत की 73वीं गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्व का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जिस समय हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के उन वीर नायकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर उनका राज्य समाप्त होने के पश्चात हमें आजादी मिली, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। और हमारा संविधान हस्तलिखित था, और ये हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। गणतंत्र का दिवस अपने में देशभक्तों की बलिदानों की अनेक कहानियां समेटे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि हम और आप आज चैन की जिंदगी बिता रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पूर्वजों ने हमें एक गौरवशाली अतीत दिया है। अब वर्तमान का सदुपयोग करते हुए आपको एक सुखद भविष्य का, सुनहरी भविष्य का निर्माण करना है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हम कैसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हम गाते हैं, भारत भाग्य विधाता। हमें सोचना होगा कि भारत क्या है। क्या ऊंचे ऊंचे पर्वत भारत है? क्या ऊंची इमारतें भारत है? कि ये नदियां और बड़ी बड़ी सड़कें इमारत है? नहीं, हम और आप भारत है। हम और आप मिलकर भारत बनाते हैं। तो जैसे हम होंगे वैसे भारत बनेगा। शुरुआत कहां से होगी? कि हमें अपने से ही शुरू करना होगा। महामहिम हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब भी विद्यार्थियों को संबोधित करते थे, वो इन पंक्तियों को जरूर कहते थे। वो पंक्तियां क्या हैं? When there is righteousness in the heart, there is beauty in character. And when there is beauty in character, there is harmony in home. And when there is harmony in home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace on the earth. तो बच्चों, हमें अपने से ही शुरू करना होगा। हमें अपनी विचारधारा बदलनी होगी। हमें अपने काम के तौर तरीके बदलने होंगे। तो जितने अभी क्राइसिस का यहाँ जिक्र किया, तो कोई क्राइसिस नहीं रहेगा। तो आइए आज हम गणतंत्र के इस पावन पर्व पर प्रण लें कि हम अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, अपने कर्तव्यों को और सजगता से करेंगे, ताकि मेरा देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाए। और अभी कोरोना गया नहीं, आपको अपने आप को कोरोना से बचा कर रखना है और अपने कर्तव्यों को और भी सुचारू ढंग से चलाना है। चमक रहा आसमान में मेरे देश का सितारा, गूंज रहा चहुं दिशा मेरे देश का नगाड़ा।
गणतंत्र दिवस पर आओ मिलकर करे दुआ, बुलंदियों पर लहराता रहे ये तिरंगा हमारा, बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जय हिंद। धन्यवाद मैडम, आपके विचार वास्तव में ही काबिले तारीफ, अनुकरणीय हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आगामी जुलाई माह 2022 में आप इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बड़ा मुश्किल है आपके इन बड़े बड़े कदमों में अपने छोटे छोटे पैर रख पाना। इस पद की गरिमा आने वाले जो आपके बदले में जो भी अध्यापक होंगे उनको बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करना होगा, तब जाके कहीं आपके आसपास हम लोग पहुंच पाएंगे। इनके अलावा मैडम सरिता सच्चर, इनका भी 2022 में ही मई में रिटायरमेंट है, तो हम गदगद हैं, आह्लादित हैं इन दोनों को हमारे बीच इस वेला में उपस्थित देखकर और आपको आने वाले समय के लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं इस मंच से हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों की ओर से भी आप इन शुभकामनाओं को स्वयं तक हस्तांतरित करें। थैंक यू। कार्यक्रम की अगली कड़ी में केवीएस को धन्यवाद देंगे हम लोग, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा लघु भारत का रूप आप कहें जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी भाषाओं, सभी क्षेत्रों के लोग मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कितनी सारी चीजों पर ओवरकम करते हुए आ गया। हम लोग देखते हैं कि एक जमाना वो था जब 2019 से पहले हम ऑफलाइन क्लासेज बड़े गर्व के साथ लिया करते थे। ऑफलाइन से हम ऑनलाइन हुए, क्लासरूम से हम लोग गूगल क्लासरूम वाले हुए। सबसे पहले सीसीटी में हमने हाथ आजमाए, आरटीई को लागू किया, आरटीआई को पूरी तरह से लागू किया गया है, डिजिटल डायरी हमने अपनाई। उसके बाद हम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का हिस्सा बने। उसके बाद हमने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत की सभी गतिविधियों को इस ढंग से अंजाम दिया कि देश के दूसरे राज्यों में भी उनको लेकर अनेक योजनाएं बनाई गई। उसके उपरांत हमने फिट इंडिया का डेमो किया और सबसे पहले ओरिएंटेशन करते हुए, इनोवेशन करते हुए पूरे देश के सामने एग्जाम्पल सेट। अभी भी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। इसी कड़ी में हमारा अभियान हमारे विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे शिक्षक साथियों की ओर से एक छोटी सी प्रस्तुति आप YouTube पर 1.5 मिनट में देख पाएंगे। और मैं जिमी मैडम से पुनः निवेदन करूंगा कि वो हमारे विद्यार्थियों के साथ वो वीडियो साझा करें, प्लीज।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपना बहुमूल्य संदेश देकर हमें गौरवान्वित करें। सत्तरवें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय लोक शिक्षकगण, ऑनलाइन माध्यम से गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े अभिभावकगण एवं होनहार विद्यार्थियों, आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्व है, जिसे सच्चे अर्थों में आजादी का दिन कहना गलत ना होगा। इस दिन लागू हुए भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि सभी धर्मों के लोग समान भाव से यह दिन मनाते हैं। इसका संबंध किसी धर्म या जाति से ना होकर राष्ट्र से होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व। ये राष्ट्रीय पर्व भारतीय जनमानस को एकता के सूत्र में पिरोते हैं। यह पर्व उन शहीदों, देशभक्तों को स्मरण कराते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता, एकता, अखंडता और परंपरा एवं इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब भी कहते हैं, और अन्य समिति सदस्यों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों में हर्ष, उल्लास और नवीन चेतना का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ में जाने न दें, अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहे। अतः एक बार फिर मैं आप सबसे इस दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार अभिव्यक्त करते हुए आप सभी को साथ इस मंच से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी अभिभावकों और शिक्षक साथियों का, होनहार विद्यार्थियों का मैं मंच से उन्हें अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, ये सर का संदेश भी है, एक प्रेम निकालो इसे, दिलों में जो खालिश है निकालो इसे, न मेरा न तेरा, न मेरा
न तेरा, न इसका, न उसका, ये हम सब का वतन है, संभालो इसे, संभालो इसे। धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हार्दिक धन्यवाद पुनः। और आप सभी इसके उपरांत इस कार्यक्रम को लाइव के उपरांत रिकॉर्डेड फॉर्म में भी यूट्यूब पर देख पाएंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।